We are starting the reflex action. Actually, a reflex action, sudden, involuntary, means no choice. Sudden, involuntary, rapid, short-lived. Stereotype, behavior or action. In response to. In response to the harmful stimuli. Is called as reflex action. So any kind of stereotype का मतलब क्या है ना, जनरल बिहेवियर. इन जनरल मतलब आपका कोई भी सडन एक्टिविटी हो रहा है, इनवॉल्यूंटरी एक्शन हो रहा है, कोई भी रैपिड मूवमेंट हो रहा है, जो आप अपने कंट्रोल में उसको फील मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, नो चॉइस यू हैव, then this type of behavior or action is called as reflex action. And always remember, reflex action is the activity in response to the harmful stimuli. Harmful stimuli के response में ही reflex action होता है, because the harmful stimuli will cause harm to your body. And उस harm को reduce करने के लिए ये action बहुत ही rapid होता है. And that is the second point why reflex action is under the control of spinal cord, not under the brain. So controlled by spinal cord by means of the spinal nerves. Why not the brain is controlled? Not by brain. To avoid what? To avoid fatigue. To avoid the fatigue to brain or brain fatigue. To avoid brain fatigue. And to do rapid action. क्योंकि देखिए ब्रेन के पास पहले से ही बहुत काम है. अगर रिफ्लेक्स एक्शन भी ब्रेन कंट्रोल करेगा तो ब्रेन हो सकता है कि ओवरलोड की वजह से फैटिग हो जाए. सेकेंड पॉइंट क्या है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अगर आप देखेंगे, प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि अल्टीमेटली द इंफॉर्मेशन विच इज पासिंग टू द ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, अगर ब्रेन के पास जाएगा तो स्पाइनल कॉर्ड होते हुए जाएगा, तो लेट होगा कि फास्टर रिस्पॉन्स होगा. इसीलिए इसको फास्ट करने के लिए, to do the rapid action and to avoid the brain fatigue, it is not controlled by brain but controlled by the spinal cord or the spinal nerves. Next, reflex pathway. Or reflex arc. Reflex pathway or reflex arc.
Supposed to be this is actually the reflex arc, and in this reflex arc हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे डॉर्सल रूट गैंग्लिया, आपको याद होगा? ठीक. This is number one, sensory or this is actually sensory or affector or receptor organ. The organ which will affect first, the organ which will receive first, the organ which will sensitive first are called as sensory organ. And what are the example comes under the sensory afferent or effector? जैसे कि स्किन हो गया, आई हो गया, ईयर हो गया, nose and tongue. These are the 5 different type of receptor or effector or sensory organ. Now it is carried through the sensory nerve fiber. सेंसरी नर्व फाइबर का आप क्या बोलेंगे? एफरेंट बोलेंगे कि इफरेंट बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? वही हो गया एफरेंट. This is dorsal root ganglion. Then this is called as your what na spinal cord. ये मैंने आपको पिछले क्लास में बोला था कि रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर. ग्रे मैटर याद है? Gray matter of spinal cord, and here it is interneuron. तो नंबर 2 हो गया सेंसरी नर्व फाइबर, नंबर 3 हो गया स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर, नंबर 4 इज मोटर नर्व फाइबर. मोटर नर्व फाइबर इफेरेंट है, which is actually afferent pathway and which is efferent pathway. Clear है? Now this is goes to the structure called as number 5, that is motor or effector organ. मोटर और इफेक्टर ऑर्गन. तो मोटर और इफेक्टर ऑर्गन के अंदर कौन कौन आएगा? मसल्स एंड ग्लैंड. हमेशा याद रखिए ये जो पाइप है ये रिसीव करते हैं एंड उस रिसीव के रिस्पॉन्स में इफेक्ट कौन करता है ना? आइदर मूवमेंट ऑफ बॉडी, कोई भी हार्मफुल स्टिमुली के अगेंस्ट में हम लोग अपना हाथ को ऐसे झटका कर देते हैं, चर्क कर लेते हैं, फटाक से रुक जाते हैं, पीछे धकेल जाते हैं, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ कि नहीं? सलाइवेशन हो सकता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन हो सकता है, टीयर ग्लैंड सिक्रेट हो सकता है, तो ग्लैंड हुआ कि नहीं? आइदर मसल्स और ग्लैंड. These are actually the motor or effector. Clear है? So this is actually the reflex pathway or reflex arc.
Complete. Now we are coming to type of reflex action. Before that, ये जो डायग्राम हमने किया है, यहाँ पे कितना साइनअप्स आपको दिख रहा है? दिस इज वन साइनअप, दिस इज अनदर साइनअप्स. वन साइनअप्स की टू साइनअप्स कितना हुआ? टू साइनअप्स हुआ. Then it is called as polysynaptic reflex. Polysynaptic and monosynaptic में difference क्या है? If the number of synapse is one, means no interneuron or with interneuron. No interneuron. Then it is called as monosynaptic. If the interneuron will be present, then synapse number will be more than one. And जितना interneuron होगा, plus one हो जाएगा number of synapse. Yes or no? Yes. Number of interneuron one, synapse is two. Number of interneuron अगर 5 हुआ, तो number of synapse कितना होगा? 6. So number of interneuron is equal to number of synapse. More than one synapse, polysynaptic. Only one synapse, monosynaptic. Monosynaptic में absence of interneuron. Polysynaptic में presence of interneuron. Difference clear है? Now the last is the ratio of sensory interneuron and motor nerve fiber, or sensory neuron, interneuron, motor neuron. As you can see in the diagram, it is 1:1:1, but not exactly 1:1:1. होता क्या है? The ratio of sensory interneuron and motor is not 1:1:1. देखिए होता क्या है, देखिए ये सपोज टू बी बहुत सारा सेंसरी है, तो बहुत सारा सेंसरी एक मोटर के साथ, एक इंटरन्यूरन के साथ किया. सपोज टू बी दिस इज अ नंबर ऑफ इंटरन्यूरन. बहुत सारे इंटरन्यूरन किसके साथ साइनअप्स किया? वन मोटर न्यूरन के साथ करेगा कि नहीं? डायग्राम को और बेटर वे में करेंगे तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा. See, आप समझिए बात. Actually, these are sensory, these are interneuron, these are motor. So many sensory synapses with one interneuron, and many interneuron synapses with one motor neuron. तो कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं? तो मैंने क्या बोला था? इट इज नॉट 1:1:1. वन सेंसरी, वन इंटरन्यूरॉन, वन मोटर न्यूरॉन, ऐसा पैटर्न नहीं है. क्यों ये फास्टर होता है? Why it is so faster? कन्वर्ज हो रहा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एट ए टाइम आएगा, तो रेस्पॉन्ड बहुत फास्टर होगा. 1:1:1 होता तो ये फास्टर नहीं होता. चलिए नेक्स्ट आते हैं. Types of reflex. Number one, monosynaptic reflex. Monosynaptic reflex reflex pathway with only one synapse, interneuron absent.
and that is example is knee jerk reflex. बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो knee jerk reflex is a monosynaptic reflex. Second is मैं मोनोजेनेटिक के बारे में डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। सेकेंड इज पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स पाथवे with more than one synapse. The reflex pathway with more than one synapse. Interneuron present. And जैसे कि मैंने आपको बोला क्या होगा, the number of synapse is equal to number of interneuron plus 1. An example, all except knee jerk reflex. So all reflex except the knee jerk is called as polysynaptic reflex. ये था फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। हम लोग सेकेंड क्लासिफिकेशन आते हैं, बी देके हेडिंग करते हैं नंबर 1, and that is what? Unconditioned reflex. Unconditioned reflex. Unconditioned reflex का मतलब with condition के without condition. मतलब common to all. Means what? Innate या acquired? Acquired. कैसे acquired हो गया? इसीलिए जोश में कभी भी होश मत हो। हम पूछेंगे ताकि तुम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो। So innate or inborn? Common to all. Need of experience or no need of experience? Yes. No need of experience. अब एग्जाम्पल दीजिए, अगर कॉमन है तो किसी को एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अब बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क, भूख लगने से वो रोएगा, ये कॉमन है। पेरिस्टालसिस, when the food will be swallowed, it is to be passes through the alimentary canal. तो पेरिस्टालसिस क्या है? It is also involuntary plus no need of any experience. ये तो ऑटोमेटिक होगा। And when the food is put in the mouth, the salivation start. Yes or no? Yes. Common है कि नहीं? हाँ सर। लेकिन फूड को स्मेल करके सलाइवेशन होना, फूड को देख के सलाइवेशन होना, फूड के बारे में सुन के सलाइवेशन होना, नीड एक्सपीरियंस। Yes or no? Yes. So कौन सा कंडीशन है, कौन सा अनकंडीशनड समझ में आ रहा है? दोनों में टारगेट सलाइवरी ग्लैंड है, लेकिन दोनों में स्टिमुलस अलग अलग है। विजुअल स्टिमुली, ऑडिटरी स्टिमुली, टेस्ट स्टिमुली, स्मेल स्टिमुली, लेकिन रिस्पॉन्ड एक ही है, सलाइवेशन, which is conditioned and which is unconditioned. Clear है? और क्या हो सकता है? Closing of eye with the flash of light
होगा? यस लिखने से बहुत लिखेंगे, लेकिन हम खाली बोल देते हैं सपोज टू बी द विड्रॉल ऑफ हैंड विद द प्रिकिंग ऑफ नीडल, क्या होगा? कंडीशन क्या अनकंडीशन? अनकंडीशन। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? आप अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस को पुट कर सकते हैं, एग्जाम्पल में वैसे ही आएगा, एग्जाम में सब वैसे एग्जाम्पल दे देगा, आपको बस इतना फील करना है कि क्या ये सबके साथ होता है या नहीं होता है। सिर्फ आम की बात है, वो तो कंडीशन क्या? आम को देख के बोलते दूर जाओ, तो वो तो कंडीशन हो गया, तभी तो छोटा बच्चा भागता है। किसको देख के? फायर फायर को देख के भाग जाना? फायर से बोलते हैं ना दूर रहना चाहिए। तो मैं कहाँ लिखा हूँ? पूछ रहे हैं, वो कंडीशन हो गया। हाँ, इसको पता नहीं है कि आग जला देगा कि मार देगा कि प्यार करेगा। सांप को देख के हम लोग भाग जाते हैं। बच्चे को कुछ पता है कि ये स्नेक है, मुझे बाइट करेगा। सब कंडीशन है, लेकिन उसका हाथ में अगर कुछ गर्म चीज टच हो जाएगा, वो तो हटा लेगा ना। वो सबके साथ तो कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पेज में। तो नंबर 2, कंडीशन रिफ्लेक्स। कंडीशन रिफ्लेक्स, देखिए कंडीशन रिफ्लेक्स में क्या होगा? इट इज द नीड ऑफ एक्सपीरियंस। ये एक्वर्ड हुआ कि नहीं? ये हो गया एक्वर्ड, प्लस दिस इज नीड ऑफ एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल देते हैं। Salivation by seeing the food, smelling the food. This is actually condition. Playing the musical instrument without looking. So playing the musical instrument without looking. Knitting without looking. स्वेटर वगैरह बुनते हैं ना, अभी तो आजकल कोई बुनता नहीं, अलग बात है वो, लेकिन घर में आप लोग देखे होंगे बुनते हैं, वो सास भी कभी बहू थी, सीरियल देखते देखते बुन लेते, स्वेटर कंप्लीट हो गया, सीरियल कंप्लीट नहीं हुआ। तो ऐसे भी हो सकता है, सो दैट इज आल्सो नीड ऑफ एक्सपीरियंस। सो नीटिंग विदाउट लुकिंग। और क्या होगा ना? हाँ, वो सब होगा, रीडिंग एज वेल एज राइटिंग। मैं खाली आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि आप समझिए बात को कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, विच इज कंडीशन एंड विच इज अनकंडीशन। एग्जाम्पल जो मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम जरूरी नहीं है कि एग्जाम्पल और क्वेश्चन वैसे ही आएगा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए।
और क्या हो सकता है ना, फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़े हैं दैट इज पैवलोव एक्सपेरिमेंट, पढ़े हो? पैवलोव एक्सपेरिमेंट का ऑन डॉग था ना, वो क्या था? बेल एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग और डॉग एक्सपेरिमेंट ऑन बेल। आ सकता है भाई, ऑप्शन में दे देगा डॉग एक्सपेरिमेंट ऑन बेल। हम पढ़े हैं, डॉग पढ़े हैं, बेल भी पढ़े हैं, होता है ना। मैं तो आपको प्रैक्टिकल चीज ही बताता हूँ कि भाई जो आप जो करने वाले हैं, जो फेस करेंगे, जिसमें आपको प्रॉब्लम होता है, वही मैं आपको आईना दिखाता हूँ। एंड हमेशा सच्चाई कड़वा होता है ना। So it is Bell experiment on dog. तो ये कंडीशन था कि अनकंडीशन था? Condition. A baby dog and a mother dog is standing, and you are putting a stone or a stick in your hand. Who will run away? Experience matters. Mother dog will run away because it need experience. Baby dog को पता नहीं है। Maybe 2-3 बार उसको पढ़ेगा तो उसको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो वो भी भागेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, नीजल रिफ्लेक्स का एग्जांपल लेके डिस्कशन कर रहे हैं। We are discussing the example of a knee-jerk reflex. Let's see.
ये पाथवे हम लोग को क्लियर कट दिखाना है। नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। This is supposed to be the hammer, and this is supposed to be the response. This is actually patella bone. Patella को क्या बोलते हैं? Kneecap. This is the tendon of quadriceps femoris muscle. And that together to form muscle spindle. And this muscle is called as quadriceps femoris muscle. Quadriceps femoris muscle. This is the neuromuscular junction. और motor end plate. हम लोग पढ़े थे, हम लोग एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हो तो 100% आपको ये मोटर एंड प्लेट वर्ड मिला होगा। The muscle is called as what? This muscle is the hamstring muscle. Neuromuscular junction किस किस के बीच में है यहाँ पे? The neuromuscular junction between the hamstring muscle plus the motor nerve fiber. दिख रहा है? So this is the dorsal root ganglion. This is afferent pathway की efferent pathway. क्या afferent pathway है क्या? This is interneuron. This is gray matter. These two are efferent pathway. Now, very important. तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? efferent pathway 1 है कि 2 है? 2 है. One efferent pathway goes to the quadriceps femoris muscle. देख रहे हैं? Another efferent pathway goes to hamstring muscles. The one which is goes to the quadriceps femoris muscle is actually the motor nerve fiber. Carries stimulatory impulse. And the motor nerve fiber which is goes to the hamstring muscle is inhibited. As this interneuron is inhibited. अब पूरा कहानी हम समझा देते हैं, देखिए एकदम क्लियर कट कहानी है। तो मुझे कहानी समझाने तो दो, बिना स्टार्ट किए हम कैसे रिजल्ट दे सकते? जब समझा दे तो आप सेम क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा।
आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा. सी everyone see over for 2 minutes. Everyone see the muscle spindle. Muscle spindle is the structure which is formed here in between the tendon of quadriceps femoris muscle and the afferent pathway. यहाँ पे जो जंक्शन बनता है ना, that is called as muscle spindle, which is takes place between the tendon of the quadriceps femoris muscle and the afferent nerve fiber जो start हुआ है यहाँ से, दिख रहा है? So when we are putting the hammer on the patella, तो नी के ऊपर जैसे ही हैमर से हम स्ट्राइक करेंगे तो क्या होता है ना, आपका जो नी है, ये जो पांव है, ये से झटका देता है, ऐसे हो जाता है कि नहीं? एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? द जर्क. तो जर्किंग के टाइम में आपका ये लेग स्ट्रेट होता है कि बेंड होता है? इसलिए मैंने रिस्पॉन्स देखो किस डायरेक्शन में दिया है. तो हम लोग पुट कर रहे हैं हैमर पैटेला के ऊपर, तो रिस्पॉन्ड हो रहा है, सीधा हो रहा है, राइट? Now the next point, when the impulse is to be carried through, when this hammer is putting on the tendon of quadriceps femoris muscle through the muscle spindle, this is carried through the afferent pathway और afferent nerve fiber के through, ये dorsal root ganglion के through किस में एंट्री किया? ग्रे मैटर में एंट्री किया कि नहीं? ग्रे मैटर में एंट्री करते ही ये ब्रांच हो जाता है into two part. One which is synapse directly with the motor nerve fiber. Because directly synapse with the motor nerve fiber will carry the stimulatory impulse to what? किसके पास लेके गया ये stimulatory effect? Quadriceps femoris muscle. तो quadriceps femoris muscle stimulated होगा कि inhibited होगा? Stimulated होगा. And quadriceps femoris muscle is a extensor muscle. What is the meaning of extensor? Now supposed to be this is your bicep muscle, ये जो आर्म में है, and नीचे जो है that is called as tricep muscle. Bicep muscle की contraction के वजह से bending होता है, तो क्या हो गया ना, flexor. And straight होता है tricep muscle के contraction की वजह से, so it is called as what? Extensor. So bending is because of flexor and extend is because of extensor. तो यहाँ पे flexor muscle है hamstring and extensor muscle कौन है? Quadriceps. Knee jerk में extension होता है कि bending होता है? Which muscle contraction need during the jerk? Contraction of quadriceps. तो quadriceps muscle को हम लोग stimulate करेंगे कि inhibit करेंगे? The stimulation of the quadriceps femoris muscle leads to the extension and that leads to the jerk. Simultaneously उसका जो opposite muscle है उसको inhibit करना जरूरी है कि नहीं? नहीं तो दोनों अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या तो उसका थोड़ा बहुत कंट्रैक्शन भी अगर हैमस्ट्रिंग मसल का हो जाता है तो ये अपोज करेगा कि नहीं? तो जर्क जो है बहुत ही सडन होता है, तो सडन करना है तो 100% एफर्ट देना पड़ेगा. एंड 100% एफर्ट तभी देंगे जब हम हैमस्ट्रिंग मसल और फ्लेक्सर मसल और अपोजिट और एंटागोनिस्टिक मसल ऑफ द क्वाड्रिसेप मसल दैट इज कॉल्ड एज हैमस्ट्रिंग मसल शुड बी इनहिबिटेड. एंड इसीलिए यहाँ पे कौन है? इंटरन्यूरॉन. तो इंटरन्यूरॉन का काम क्या है ना? द सेकेंड ब्रांच जो हुआ है वो इंटरन्यूरॉन देखो क्या इनहिबिटरी है कि स्टिमुलेटरी है? तो यहाँ पे इंटरन्यूरॉन देखो स्टिमुलेटरी इफेक्ट को इनहिबिटरी में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके उसका जो नेक्स्ट ब्रांच है वो कहाँ गया? ठीक है. तो जर्क इज बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ व्हिच मसल? क्वाड्रिसेप. तो क्वाड्रिसेप को आप मोटर ऑर्गन बोलेंगे कि नहीं? तो मोटर ऑर्गन कौन हो गया? क्वाड्रिसेप. सेंसरी ऑर्गन कौन हो गया ना? टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप और मसल स्पिंडल. Starting from the sensory organ to end in the motor organ, that pathway is called as reflex pathway. Yes or no? Yes, sir. मैंने क्या लिखा था रिफ्लेक्स आर्क में जो दिया था डेफिनेशन, उसमें देखिए तो क्या लिखा था?
क्या लिखा था मैंने, रिफ्लेक्स पाथवे का 1 2 3 4 5 तीनों 5 पॉइंट था ना। हाँ उसमें देखिए 5 पॉइंट में से फर्स्ट क्या है, सेंसरी ऑर्गन, सेकंड क्या है, सेंसरी नर्व फाइबर, थर्ड क्या है, इंटरन्यूरल विद ग्रे मैटर प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड, फोर्थ क्या है, मोटर नर्व फाइबर, फिफ्थ क्या है, मोटर और इफेक्टर ऑर्गन। तो वहां पे नीजर रिफ्लेक्स में सेंसरी कौन हो गया, मसल स्पिंडल, नेक्स्ट एफरेंट पाथवे, नेक्स्ट स्पाइनल कॉर्ड, नेक्स्ट मोटर नर्व फाइबर कौन है ना, दैट इज स्टिमुलेटरी मोटर नर्व फाइबर की इनहिबिटरी स्टिमुलेटरी। मोटर ऑर्गन कौन हुआ, क्वाड्रिसेप्स। ये जो रिफ्लेक्स पाथ आपके सामने है, इस रिफ्लेक्स पाथ में कितना साइनप्स, हाउ मेनी साइनप्स, मोनोसाइनेप्टिक हुआ कि पॉलीसाइनेप्टिक हुआ। आपको बस देखना है कि रिफ्लेक्स पाथवे कौन सा है। रिफ्लेक्स पाथवे ये वाला रिफ्लेक्स पाथवे नहीं है, रिफ्लेक्स पाथवे वही होगा जिसमें मोटर ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होगा। और यहाँ पे मोटर ऑर्गन क्वाड्रिसेप है कि हैमस्ट्रिंग है, क्वाड्रिसेप मसल्स को जो पाथवे है उसमें कितना साइनप्स है, मोनोसाइनेप्टिक हो गया। इसीलिए आपको याद रखना है क्वाड्रिसेप मसल जो कि यहाँ पे एक्सटेंसर है, हैमस्ट्रिंग मसल यहाँ पे फ्लेक्सर है। Here in this case, quadriceps muscle is stimulation and hamstring muscle यहाँ पे क्या हो रहा है, inhibition। quadriceps muscles को stimulate करने के लिए stimulatory motor nerve fiber है, and hamstring muscle को inhibit करने के लिए inhibitory motor nerve fiber है। and inhibitory motor nerve fiber कहाँ से start हुआ, interneuron with inhibitory effect। क्लियर है, आपका क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया ना। आपका क्वेश्चन पूछने से पहले ही मुझे आंसर देना था, मुझे पता है। बेटा तेरा उम्र जितना है ना, हम उससे ज्यादा पढ़ा चुके। तुम लोग कहाँ पे प्रॉब्लम झेलोगे, कहाँ पे तुमको प्रॉब्लम होगा, मुझे बढ़िया से पता है। So this is actually the structure of the knee nerve reflex. Which is monosynaptic. Complete. चलिए आगे। आपका गाड़ी इतना स्लो होने से नहीं चलेगा, ये हंसने की कोई बात नहीं। अब क्लास में थोड़ा एक्टिव रहिए, नहीं आप थोड़ा पैसिव रहते हैं, ठीक है। बाकी सब में तो एक्टिव है, लेकिन बस क्लास में ही पैसिव हो जाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको पोजीशन प्रॉब्लम है तो आप पोजीशन चेंज कर लीजिए, मुझे कोई इशू नहीं। तो सबका हो गया, वी आर कमिंग टू